we were doing in the last class. And today we are going to complete one topic, that is Power Shakti. It is one of the initiative, sorry, it's Project Shakti. It is one of the initiative which is taken by Hindustan Unilever in the rural area. So we are going to complete these two topics. But before that, I just want to tell you that please turn on your camera. Otherwise, I'm not going to give attendance for today as well as for other classes for 7 days. And I'm not going to say this in a normal way. मैं आप लोग चलिए. Okay. So let's start with the class. So in the last class, we were talking about some of the schemes like Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Second one is Deen Dayal Upadhyay Gramin Yojana, Kaushalya Yojana. Swarna Jayanti Gram Swarojgar Yojana, National Rural Livelihood Mission. So we completed all these points. So the first type of scheme, that is Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, it was launched on 25th December 2000 and by the Prime Minister, former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. So we basically launched it on 25th December 2000. And जो scheme था, इसका main reason क्या था? To increase the connectivity of rural roads with the urban areas, right? तो rural connectivity को increase करने के लिए, transportation को increase करने के लिए, convenience को increase, मतलब convenience of the consumers को increase करने के लिए, people को increase करने के लिए, this scheme was launched. And इसमें जो और इसका एक और भी aim था, to reduction of the poverty and promoting the economic and social services. So with the Gram Sadak Yojana, this scheme also provide the मतलब कि to basically reduce the poverty and the promoting the economic and social services. The second one is Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushalya Yojana. इसमें था कि it is a part of a national livelihood mission और इसका जो objective था, it was catering to the career और aspiration of rural youth. So इसके नाम से ही पता लग रहा है, it is talking about कौशल्य योजना, ग्रामीण कौशल्य योजना. तो ये जो आपका स्कीम था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कैटर करना, प्रोवाइड करना करियर एस्पिरेशंस अमॉन्ग द यूथ, अमॉन्ग द रूरल यूथ, राइट. और इसको लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2014 में. और इसका प्राइम फोकस यही था कि जो रूरल यूथ है, जिनकी एज ग्रुप है 15 इयर्स टू 35 इयर्स, उन पे फोकस किया गया था इस स्कीम के अंडर में. और उनको इस पूरे प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट था, जो गवर्नमेंट ने ये कॉस्ट, जो फंड इसमें प्रोजेक्ट में जो फंड लगाया था, इट वाज अराउंड 1500 करोड़. ठीक है. और इस योजना के तहत लगभग ये योजना 21 स्टेट्स में और बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज में थे और लगभग 568 डिस्ट्रिक्ट और 6215 ब्लॉक्स में इसको अप्लाई किया गया, इसको लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया. और ये जो है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं एक पूरा डेटा आपको बताऊं तो अराउंड 2.7 लाख कैंडिडेट को ट्रेनिंग दिया गया अंडर दिस प्रोग्राम. 2.7 लाख यूथ को ट्रेनिंग दिया गया और लगभग आज 1.34 करोड़ कैंडिडेट्स जो 1.34 लाख कैंडिडेट्स आर डूइंग job, placed in the job. So we understand that what basically this scheme was, and it is basically launched in the rural area. It is not for the urban, but it was basically launched in the rural area. Let's move toward the next scheme, and that is Swarna Jayanti Gram Swarojgar Yojana, SGSY, National Rural Livelihood Mission. So in this scheme, ये जो स्कीम था, इसको लाने का जो मेन रीजन था, इट वाज लॉन्च्ड इन 2011 में. इसको रीडिजाइन करके लॉन्च किया गया था. पहले भी ये आपका जो स्कीम था वो आया था, बट इट वाज रीडिजाइन एंड लॉन्च्ड अगेन इन 2011. ठीक है. इसका एक और नाम है एंड द नेम इज आजीविका. आजीविका, ठीक है, आजीविका इसका नाम था. इस स्कीम में मेन एम क्या था कि एम्पावर करना वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप के मॉडल को एम्पावर करना. ठीक है. दैट वाज द एम ऑफ दिस स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. और इस स्कीम में लगभग गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था लोन ऑफ 3 लाख रुपीस, यानी जिनको भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है, स्वरोजगार से समझ में आ ही रहा होगा, जिनको भी अपना बिजनेस शुरू करना है उनको 3 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा था. पहले इसका जो इंटरेस्ट रेट था, दैट वाज अराउंड 7%, बट लेटर ऑन इट वाज रिड्यूस्ड टू 4%. ठीक है. समझ में आया सबको? क्लियर हुआ? और ये जो स्कीम था ना, इट वाज आल्सो सपोर्टेड बाय
यहाँ तक समझ में आया? तो 4% जो था, मतलब पहले 7% इंटरेस्ट के साथ स्टार्ट हुआ था, बट विच कैन बी रिड्यूस्ड टू द 4% एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, यानी रिपेमेंट के टाइम पे इसको 4% पे रिड्यूस कर दिया गया। जो स्कीम है ये, इसको एडेड, इट मींस दैट इट इज आल्सो बेसिकली फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने भी इस स्कीम को चलाने में इंडिया में हेल्प किया था। तो दिस इज द बेसिकली अ स्मॉल समरी अबाउट स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलोज स्कीम। ये जो स्कीम था, PMRDF इसका नाम था, और इस स्कीम को इनिशिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा विथ कोलैबोरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट इसके साथ थी। और इसका दो गोल था। दो गोल क्या था कि एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी जिला के प्रशासन को बेहतर करना, और सेकेंड जो इसका था कि रिमोट एरियाज जो कि अंडर डेवलप्ड है, रिमोट एरियाज वैसे एरियाज होते हैं जो बहुत ही ज्यादा साइड एरियाज को हम रिमोट एरियाज कहते हैं, ठीक है, जो बहुत ही अंदर एरियाज होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंडर ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर जो मल्टीपल विलेजेस हैं, कुछ विलेजेस काफी फार हैं, दूर हैं, बहुत अलग थलग एरिया जो है उसको एक तरीके से हम रिमोट एरियाज कहते हैं। तो वैसे एरियाज जो बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड थे, रिमोट एरियाज, उनको बेहतर करना, और साथ साथ में जिला के जो प्रशासन है यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करना, ये एम था आपके प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलो स्कीम का। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो स्कीम है दैट इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा जिसको हम कहते हैं। इस एक्ट के अंडर में 2005 में इस एक्ट को लाया गया नरेगा को, और लगभग 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी गई। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। नरेगा, अगर हम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की बात करें 2005 की, तो यहाँ पर 100 दिन का गारंटीड आपको जॉब मिलेगा, प्रोवाइड किया जाएगा। और जो अडल्ट्स हैं, खासकर उन लोगों को जो कि जॉब करने की एज पर हैं, हु आर द एडल्ट्स, एज वेल एज जो ये एक्ट है, इट एड्रेसेस द वर्किंग पीपल देयर फंडामेंटल राइट टू लीव लाइफ विद डिग्निटी। सो ऐसे लोग जो डिग्निटी से लाइफ जिए, और जो फंडामेंटल राइट के साथ, मतलब एक फंडामेंटल राइट है दैट इज राइट टू लाइफ या राइट टू वर्क, ठीक है। तो इसके तहत इस योजना को लाया गया, और ऐसा बोला गया कि 15 दिन के भीतर अगर आपको जॉब नहीं मिलता है, विद इन 15 डेज इफ यू विल नॉट गेट द जॉब, देन 100 days unemployment wages or allowances will be provided to those people who were adult and who are willing to get the job, right? तो उसके बाद ये जो है, ये नरेगा स्कीम का भी यही रीजन, यही मेन एम था, टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल यूथ। क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक समझ में आया? एवरीवन, दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसको लॉन्च किया गया था 2001 में, और इसका मेन एम था प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पुअर। वैसे गरीब लोग जो आपके स्टेट में, मतलब जो आपके विलेज में हैं, उनको जॉब प्रोवाइड करना, दिस इज द एम ऑफ संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसका एक और भी एम था, इट इज ऑल्सो एम टू प्रोवाइड फूड टू पीपल इन एरियाज हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो तुम लोगों ने APL और BPL के बारे में सुना होगा, अबव पॉवर्टी लाइन एंड बिलो पॉवर्टी लाइन। जो अबव पॉवर्टी लाइन होता है, वहां पर भी कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे अभी कोविड के टाइम पे जो बिल्कुल जस्ट आपके BPL के ऊपर जो अबव पॉवर्टी लाइन थे, वो सब BPL में आ गए, राइट? सो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, एक अमाउंट के तहत इसको तय किया जाता है कि अगर एक पर्सन जो है वो 100 रुपीज पर डे नहीं कमाता है, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन में कंसिडर किया जाता है। ऐसे ही अमाउंट डिसाइड किया गया, अभी शायद अमाउंट जो है वो अमेंड होके चेंज हुआ होगा, बदला होगा, मॉडिफाई किया गया होगा। तो यहाँ पर जो संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना है, उसको लॉन्च 2001 में किया गया, इस ऑब्जेक्टिव के तहत कि फूड लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट गरीब लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और भी ऑब्जेक्टिव्स थे इस योजना का, जैसे सोशल एंड इकोनॉमिक एसेट्स वगैरह प्रोवाइड करना जो रूरल एरियाज में रहते हैं। लेकिन ये जो स्कीम था ना, ये किसी भी एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर और मिडिल मैन को इंक्लूड नहीं करता था। They are not including those people who are working as a middleman and as a contractor in the rural areas. They are not including those people, but those people who are below poverty line, providing them a job as well as providing them a basic need, that is food, ठीक है, as well as social and economic assets,
That is the aim और objective of संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना. क्लियर हो गया? समझ में आया सबको? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सर्व शिक्षा अभियान. मुझे लगता है ये तो सबको पता होगा, व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान. सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान जो है ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लाया गया था, लॉन्च हुआ था 2000 में. इसका मेन एम क्या था? देखो आप लोग को मैं बताती हूँ कि रूरल एरियाज में जो आपकी स्टूडेंट का ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है. ठीक है, अगर मैं बच्चों की बात करूं, गर्ल्स की बात करूं, तो ड्रॉप आउट रेट बच्चों मतलब बॉयज के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हाई है. राइट, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इतने ज्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं कि उनको जॉब करना पड़ता है फॉर देयर लाइवलीहुड, है ना, और उनका स्कूलिंग पढ़ाई सब खत्म हो जाती है. तो ये चीज जो है ये हमारा इंडिया तो बहुत पहले से ही फेस कर रहा है और इसी को देखते हुए ये अभियान को लाया गया. सर्व शिक्षा अभियान वाज लॉन्च इन 2000 और इसका अटेम्प्ट क्या था, इसका काम क्या था? टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल द चिल्ड्रन, उन सबको, उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना, पढ़ाना जिनकी उम्र लगभग 6 साल से 14 साल के बीच में है. स्टूडेंट्स या बच्चे जिनकी उम्र 6 से 12 साल की है, ऐसे एज के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना ये एक बेसिक फंडामेंटल राइट है, ये कहते हुए इस अभियान को लाया गया. आपको मैं बताती हूँ कि मिड डे मील का जो स्कीम है वो भी आपके सर्व शिक्षा अभियान के अंडर में ही शुरू हुआ था, क्योंकि बच्चे जो थे वो, ये बोला गया उनकी फैमिली के द्वारा कि जब बच्चों खाएंगे ही नहीं बच्चे तो पढ़ के क्या करेंगे. दिस वाज द लाइन व्हिच इज यूज्ड बाय द फैमिलीज. सो मिड डे मील जो कि बच्चों को दोपहर का खाना फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने का जो एम था इस पर्टिकुलर मिड डे मील में, वो भी शुरुआत की गई. और सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द केरला इन द साउथ इंडिया. राइट, तो जो ये सर्व शिक्षा अभियान है इसका जो फोकस था दैट इज टू प्रोवाइड द फ्री एजुकेशन ऑफ द एज ऑफ 6 to 12 years. रिमेंबर दिस, 6 to 14, 12 गलती से लिख लिया तो इट इज 14, 6 to 14 years. राइट, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाए, ये सर्व शिक्षा अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव था. समझ में आया? और इसका जो पूरा प्रोजेक्ट का जो एक्सपेंस था यानी जो पूरा खर्च था इसको फंड किया गया था सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा, विद द कोलैबोरेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ. क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? क्लास, यस और नो? Yes. Okay. Yes, ma'am. Okay. Next one is संसद आदर्श ग्राम योजना. संसद आदर्श ग्राम योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना ये एक रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था जिसको लॉन्च किया गया था 2014 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो संसद आदर्श ग्राम योजना क्या है? तो ये योजना जो है इट इज फॉर द रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च इन 2014 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, in which each member of parliament will take the responsibility of 3 villages and took after the personal, human and social, environmental and economical development of villages. तो ये जो संसद आदर्श ग्राम योजना है इसकी शुरुआत की गई थी रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा, मतलब एक रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 2014 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. in which each member of parliament, अच्छा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी सुना है ना सबने? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जिसको हम कहते हैं. Yes, Yes, ma'am. तो यहाँ पर यही चीज बोला, नाम से पता है संसद आदर्श ग्राम योजना. तो यहाँ जो भी हर एक मेंबर जो कि पार्लियामेंट के मेंबर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी 3-3 विलेजेस की, यानी एक सांसद एक एमपी के अंडर में 3 विलेज रख दिया गया. तो हर सांसद के अंडर में 3-3 करके विलेजेस एलोकेट कर दिया गया. राइट, अब उनका काम क्या था? व्हाट वाज द वर्क ऑफ दोस एमपीज? तो उनका काम था कि वो वहां के ह्यूमन, सोशल, एनवायरमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखेंगे, यानी वहां के ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट में यानी विलेज डेवलपमेंट में वो एमपी जो होंगे वो अपना योगदान देंगे. ठीक है, और इम्प्रूव करेंगे वहां के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी इंक्रीज बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, व्हेन एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज. राइट, और एक क्वालिटी मेंटेन करेंगे विलेज में,
और इसके लिए no funding have been provided to this project and it can be raised through the existing schemes. तो इसके लिए कोई स्पेशली फंड एलोकेट किया नहीं गया था गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन जो ऑलरेडी स्कीम्स थे उनके लिए जो फंड आया था उसी से इसको भी फंड कर दिया गया था। तो कोई स्पेसिफिक और स्पेशल फंड इसके लिए अराइज नहीं किया गया था। तो जस्ट रिमेंबर दिस। आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Next one is National Social Assistance Program. National Social Assistance Program. ये सारे स्कीम सुने सुने लग रहे हैं कि नहीं? सुना है कि नहीं कभी? मैम कुछ सुना हुआ है। तो सर्व शिक्षा अभियान का तो एडवर्टीजमेंट भी आता था एंड दैट एडवर्टीजमेंट इज नोन एज द सोशल एडवर्टीजमेंट। तो वो भी आता था, आप लोगों ने देखा होगा। अभी भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के 1986 को देखिए आप, उससे भी रिलेटेड जागो ग्राहक जागो के ऊपर कितने सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं। तो दूज आर द सोशल एडवर्टीजमेंट, राइट? है ना? Okay. तो इसी Yes. वजह से आप लोगों को सर्व शिक्षा अभियान तो सुना हुआ होगा ही, आई एम श्योर अबाउट इट। मैम ये दोनों मैम अलग है मैम, उसको हिंदी में बोल रहा फिर इंग्लिश उसका ये हो गया नेशनल रूरल, हाँ, नेशनल सोशल। नेशनल सोशल क्या बोल रहे हो? ओ मैम आप बोल रही थी सही। इसको नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये जो है इट इज बेसिकली कम अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और इसका मेन ड्यूटी क्या था? टू प्रोवाइड द असिस्टेंस टू द सिटीजन इन टर्म्स ऑफ सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, इन लिमिट ऑफ इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज। अब जैसे वैसे लोग जिनका एज 60+ है, अब वो ना ही ज्यादा जॉब कर सकते हैं और उनका जो हेल्थ कंडीशन है दैट इज ऑल्सो डेटोरिएटिंग। जो भी जिसकी भी उम्र 60+ होती है, उनका एज ऐसा होता है जहां पर दे आर नॉट वेरी मच कैपेबल टू डू लॉट ऑफ वर्क, राइट? सो ये जो है, ये नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो था, इसका मेन ड्यूटी यही था कि असिस्टेंस देना लोगों को, सिटीजन्स को, इन टर्म्स ऑफ सीकनेस को लेकर के, बीमारियों को लेकर के, कि अगर कोई बीमार है तो उसको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगार है उनको लेकर के, और ओल्ड एज को लेकर के, जो कि इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज में जो कि बहुत ज्यादा बेटर या बेहतर नहीं है। तो इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज का मतलब ये हुआ कि जो कमा नहीं सकते हैं, जो पैसे अर्न नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये जो स्कीम था, इसको लॉन्च किया गया था, स्पॉन्सर किया गया था बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसमें जो फंड्स प्रोवाइड किए जा रहे थे, ये फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड किया जा रहा था, फंड्स। और ये जो लॉन्च हुआ था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हुआ था। और ये जो फाइनेंशियल हेल्प था, ये किसको किसको मिल रहा था? तो विडोज को मिल रहा था, एल्डरली पीपल को मिल रहा था, 60+ वाले को, और जो लोग डिसेबल हैं, यानी कि पीपल विथ डिसेबिलिटी, उनको पेंशन्स मिल रहा था। तो इसके तहत, इस प्रोग्राम के तहत किसको किसको पेंशन्स मिल रहा था? आपके विडो, एल्डरली पीपल एंड द डिसेबिलिटी ऑफ इन फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है? उन लोगों को पेंशन इसमें प्रोवाइड किया गया था। अब डिसेबिलिटी में भी 2-3 तरीके की डिसेबिलिटी होती है। पहले तो 2 डिसेबिलिटी होते हैं, पार्शियल और 100% डिसेबिलिटी, राइट? सो पार्शियल डिसेबिलिटी, जैसे किसी के हाथ में अगर लगा है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। समझ में आया सबको? ये जो प्रोग्राम था, इट इज बेसिकली स्टार्टेड फॉर दोज पीपल हु आर इनकैपेबल फॉर अर्निंग द मनी एंड हु, जैसे आपको मैंने पार्शियल और टोटल डिसेबिलिटी बता रही थी मैं। तो पार्शियल डिसेबिलिटी का मतलब ये होता है विच इज टेम्पररी and which is not going to become hindrance to do any activity। जैसे किसी के एक हाथ में प्रॉब्लम और एक हाथ ठीक है, तो उसको 100% डिसेबिलिटी में हम नहीं लेंगे। ऐसे यहाँ पर कोई पार्शियल और टोटल डिसेबिलिटी की बात हो नहीं रही है, बट हियर इट इज मेंशन दैट द डिसेबिलिटी अगर है तो उस केस में पेंशन मिलेगा विडोज को, और एल्डर पीपल यानी 60+ के लोगों को पेंशन दिया जाएगा इस स्कीम के अंडर। और जो ये स्कीम था, इट वाज लॉन्च्ड ऑन अगस्त 15, यानी 15th of August, इंडिपेंडेंस डे के दिन 1995 में। तो आई गेस दिस स्कीम इज क्लियर टू एवरीवन? ये स्कीम क्लियर है सबको? यस मैम। यस सलोनी? मैम बहुत सारे कॉम्पिटिटिव लेवल में रिजर्वेशन भी मिलता है ना
toward the next program and that is प्रधानमंत्री आवास योजना, और इसका एक और नाम है इंदिरा आवास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना। ठीक है, सो इंदिरा आवास योजना जो है इट इज रिवैम्प्ड एज अ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। 2016 में इंदिरा आवास योजना का नाम बदल करके कर दिया गया प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। और ये एक वेलफेयर प्रोग्राम था जिसको शुरू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू प्रोवाइडिंग द हाउसेस टू द रूरल पीपल। ठीक है, वैसे लोग जो जिनका अपना घर नहीं है उन लोगों को, रूरल पीपल को घर प्रोवाइड करना, ये बेसिकली इस स्कीम का बेसिकली एम था। द गोल ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड होम टू ऑल सिटीजन टिल 2022। यानी जब ये स्कीम शुरू किया तो ये चीज माना गया कि 2022 तक लगभग हर सिटीजन, हर एक रूरल पीपल को हम लोग घर दे देंगे। और जो इस घर का जो कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट था, यानी कि जो घर बनाया जा रहा था, कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, तो उसका जो कॉस्ट था इट वाज बेसिकली कोलैबोरेटेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के द्वारा था। और ये जो स्कीम था ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के सारे रूरल एरियाज पर अप्लाइड और इम्प्लीमेंटेड था। मतलब इट इज नॉट फॉर स्पेसिफिक फॉर 2 or 3 स्टेट्स, बट इट इज बेसिकली अप्लाइड फॉर ऑल द रूरल एरियाज। बस 2 जगह को छोड़कर, दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर हर एक स्टेट में जितने भी रूरल एरियाज है सब जगह पे ये स्कीम जो था इट वाज अप्लाइड। ठीक है, उसके अलावा इस स्कीम के अंडर में कुछ बेसिक एमिनिटीज की भी बात की गई थी, जैसे घर में टॉयलेट्स, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा विथ हाउस। सो दिस इज, और ये जो अलॉटमेंट होगा, ये जो हाउस अलॉट किया जाएगा, इट इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर द वाइफ और स्पेसिफिकली फॉर द हस्बैंड, बट इट इज प्रोवाइडेड टू द ज्वाइंटली अंडर द नेम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। यानी ये जो घर मिलेगा ये हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के नाम पर अलॉट किया जाएगा। सो दिस इज द प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना। समझ में आया सबको? सबको क्लियर हो गया? यस मैम। एवरीवन, class, everyone, this point is clear? Yes, ma'am. Okay. Next one is Antyodaya Anna Yojana. Antyodaya Anna Yojana. Antyodaya Anna Yojana. बस 2 स्कीम्स बचे हैं जिनको आप पढ़िए। अंत्योदय अन्न योजना जो है इट वाज लॉन्च्ड इन 2000। इसको 2000 में लॉन्च किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम। तो अंत्योदय अन्न योजना जो था इसका मेन एम था कि लगभग 2 करोड़ लोगों को सब्सिडाइज्ड रेट पर हम फूड प्रोवाइड करें। सब्सिडाइज्ड रेट का मतलब वो रेट होता है जो रेट आपके नॉर्मल मार्केट प्राइस से कम होता है। जैसे आज भी राशन कार्ड पे 3 रुपए किलो चावल, 4 रुपए किलो गेहूं ये मिलता है ना। सो इट इज अ सब्सिडाइज्ड रेट और द रेट विच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो अंत्योदय अन्न योजना का जो मेन एम था इट इज प्रोवाइडिंग द ग्रेन्स टू अराउंड 2 करोड़ पीपल एट सब्सिडाइज्ड रेट। एज पर द स्कीम जो बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिलीज थी उनको 35 किलो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना, ये मेन एम था। लगभग 35 किलो हर महीने फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना, इट वाज द एम ऑफ अंत्योदय अन्न योजना एंड दिस वाज स्पेसिफिकली स्टार्टेड फॉर द बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, एंड द नंबर ऑफ पीपल विद दैट वाज एस्टिमेटेड एट दैट टाइम इट वाज 2 करोड़। ठीक है, और प्राइस जो था बहुत ही लो प्राइस था, लाइक 3 रुपीज केजी जो था वो राइस का रेट था और 2 रुपीज केजी व्हीट का रेट रखा गया था अंडर दिस स्कीम। और जो ये स्कीम था सबसे पहले ये पूरे इंडिया में सबसे पहले जो स्टेट में लॉन्च हुआ था इट वाज राजस्थान। सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई थी इसकी? राजस्थान की। तुम लोग को मैं कुछ एडिशनल चीजें बताती हूँ अंत्योदय अन्न योजना के बारे में। अंडर अंत्योदय अन्न योजना देयर वाज 2 थिंग्स व्हिच वाज स्टार्टेड। One was buffer stock and second one was बताओ, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी कि जो आप लोग गवर्नमेंट के देखते हैं ना शॉप्स जो कि राशन कार्ड पर आपको देते हैं अन्न, तो पीडीएस बहुत जगह पे शुरू किया गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके अंडर में नए गवर्नमेंट के शॉप्स, स्टोर्स खोले गए और उसमें उसके थ्रू अन्न जो है वो प्रोवाइड करना शुरू किया गया, ग्रेन स्टार्ट किया गया प्रोवाइड करना।
और जो बफर स्टॉक का मतलब ये होता है कि जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर आपके ग्रेन्स को फार्मर से खरीद करके स्टॉक कर लेती है, ताकि आगे चल के अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आए या फिर किसी भी तरीके का कोई डिजास्टर आए तो उस ग्रेन को यूज किया जा सके कंट्री के लाइवलीहुड के लिए या फिर आपके खाने के लिए, राइट। तो बफर स्टॉक और पीडीएस जो सिस्टम था, इट वाज स्टार्टेड अंडर दिस अंत्योदय अन्न योजना। समझ में आया? समझ में आया? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड बफर स्टॉक। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Okay. Next one is provision of urban amenities in rural areas. Provision of urban amenities in rural areas. Provision of urban amenities in rural areas. पूरा, इसका नाम क्या है? पूरा, इसका नाम क्या है? पूरा। हेलो। Yes, अब इसका क्या था? It was basically proposed by APJ अब्दुल कलाम। इसको शुरुआत मतलब ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। और इसका मेन एम क्या था? द एम वाज टू अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज जो हैं ऐसा होना चाहिए जो कि प्रोवाइड करे आपके सर्विसेज टू द रूरल एरियाज, यानी कि आप बेटर कीजिए अर्बन एरियाज की सर्विसेज को और अर्बन एरियाज को, दैट इज गोइंग टू बेसिकली सपोर्ट द रूरल डेवलपमेंट। तो ये चीज बोला गया था इस स्कीम के अंडर में। ये स्कीम जो था सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने शुरुआत की थी, इसका लॉन्च हुआ था ये 2004 में। और इसका एम क्या था? PURA का, to propose that urban infrastructure and services should be provided in rural areas to create opportunity outside the cities. So infrastructure better करना urban और rural areas का, it was the aim of this पूरा provision of urban amenities in rural areas. समझ में आया? This point is clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. तो प्रोजेक्ट शक्ति जो है ये इसने इनेबल किया उन रूरल विमेन को ताकि वो अपने एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को नर्चर कर पाए और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाए। इसके लिए प्रोजेक्ट शक्ति को लाया गया। ये जो अटेम्प्ट था, ये जो प्रोजेक्ट शक्ति था, इट वाज बेसिकली स्टार्टेड बाय द हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी। एंड यहाँ पर ये किस तरीके से काम किया जाता था? सो इट इज टोटली बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। इस योजना के तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत जॉब जो मिलती थी वो मिलती थी विमेन को, और उन विमेन को क्या कहा जाता था? शक्ति अम्मा। इनको जॉब दिया जाता था, इनको ट्रेनिंग दिया जाता था कि कैसे ये अपने प्रोडक्ट को सेल करे, ठीक है, घर घर जाकर के, और कैसे ये अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाए नियर बाय स्मॉल रिटेल आउटलेट में। यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट था जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के द्वारा शुरू किया गया। वैसी महिला या वैसी विमेन जो जॉब नहीं ले सकती थी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एजुकेशन, सो उनके लिए ये जो योजना था, इसकी प्रोजेक्ट जो था ये शुरू किया गया। ये क्योंकि प्राइवेट कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था, इसीलिए हम इसे एज अ स्कीम नहीं कह सकते, बट इट वाज अ इनिशिएटिव टू प्रोवाइडिंग द जॉब टू द रूरल विमेन। ठीक है, अब यहाँ पर रोल क्या था विमेन का? दैट दे इनेबल्स देम टू सेल HUL प्रोडक्ट टू द स्मॉल रिटेल आउटलेट इन देयर इमीडिएट विलेज एज वेल एज डायरेक्टली टू द हाउस होल्ड विद इन द कम्युनिटी। यानी आसपास जैसे कोई विमेन है जो आप शक्ति अम्मा है, उनका काम था कि आसपास के छोटे छोटे रिटेल स्टोर को भी अपना प्रोडक्ट देना हिंदुस्तान यूनिलीवर का। हिंदुस्तान यूनिलीवर कौन सा प्रोडक्ट बनाता? दे आर मेकिंग FMCG, राइट? दैट इज FMCG कंपनी, दे आर मेकिंग कन्वीनियंस प्रोडक्ट, राइट? तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो वैसे गुड्स को हिंदुस्तान यूनिलीवर सप्लाई करती थी विमेन को प्रोजेक्ट शक्ति के अंडर में, जो जॉब करती थी, शक्ति अम्मा को प्रोवाइड करती थी, और वो घर घर जाकर के और आसपास के रिटेल स्टोर में सामान बेचते थे। अब ये जो टीम था RSP, रूरल सेल्स प्रमोटर, ये जो कोच थे शक्ति विमेन के, जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट क्या हैं, कैसे हैं और कैसे उनको सेल करना है, इन सब की ट्रेनिंग दिया करते थे। ठीक है, इसमें आपके सॉफ्ट स्किल पर भी काम कराया गया था कि विमेन कैसे कम्युनिकेट करेंगी,
है ना, वहां की रूरल विमेन कैसे कम्युनिकेट करेंगी वहां के लोगों से और कैसे उनको इन्फ्लुएंस करेगी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो ये सारे के सारे जो टेक्निक्स जो थे इसको सिखाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया था बाय द RSP, रूरल सेल्स प्रमोटर। ठीक है, और ये जो इनिशिएटिव था, दिस इवोल्यूशन ऑफ इनिशिएटिव, यहाँ पर जो मतलब एक तरीके से वो वुमेन थी जो अपना कुछ काम शुरू करना चाहती थी या काम करना चाहती थी, उनको ही इस शक्ति अम्मा बनाया गया। ठीक है, और यहाँ पर जो बाद में शक्तिमान भी बनाया गया, कुछ लोगों को भी जोड़ा गया। पहले तो सिर्फ विमेन को जॉब दिया जा रहा था, फिर बाद में कुछ लोगों को भी जोड़ा गया इस प्रोग्राम में, इस प्रोजेक्ट में, और उसके तहत जो है वो एक लाइवलीहुड के लिए और बेटरमेंट के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड और एम्प्लॉयमेंट के लिए ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ने काम किया। ठीक है, ओके। और इसका जो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी, वो भी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एनीवन हैव एनी डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? नो। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। So I am asking roll number 1 to 10. No, roll number 2, ma'am. Okay. 11 to 20. 13. 13. Okay. 21 to 30. 31 to 40. 41 to 50. 51 to 60. Ma'am, 58. Ma'am, 60. Okay. 58, 60. 61 to 70. 67, ma'am. 76. Yes, Next, ma'am, 76. 77. 77. 81 to 86. Ma'am, 71. Ma'am, 86. 71 or 86. Okay, Ma'am, and 64. 64 is done. 67, ma'am. 67. Anyone else? Anyone else?